ये ऋत्विक तावरी कौन सा चैप्टर है यार? ये चैप्टर अर्शिया कौन सा चैप्टर है? प्रोपोर्शन डायरेक्ट इनवर्स। हाँ जी सर आई डोंट रिमेम्बर। सर मेरी बुक के हिसाब से 12 है। चलो मैं देखता हूँ। मैं बेसिकली क्या होता है ना 13 एक्चुअली RS अग्रवाल के अंदर क्या होता है, एक एक चैप्टर को बहुत सारे उसमें स्प्लिट करके रखते हैं, इसलिए ज्यादा चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। ओके, एनी डाउट्स? ऋत्विक, चंदेल, वंश, अर्णव, सर अर्शिया, शिया, भैया कोई किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ बिफोर वी स्टार्ट। प्रभगुण, हाँ बताओ भाई। Sir, what do we mean by the term jurisdiction? ओके बता। I'll just explain to you what is the term jurisdiction. Sir. Yeah, who can tell? I think there are some people who know this. Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you, Ritvik. Sir, can you Sir, repeat the मैं- question? Okay, I'm putting the question in the chat box. Ritvik Tawari, एक मिनट hold करना. I'm just putting the question in the chat box. Define the term jurisdiction. IKID के लिख दिया करो फट से यार, कंफ्यूजन ही खत्म, तुम्हारा दिल खुद का साफ हो जाएगा कि भाई मुझे नहीं पता था, मैंने बोल दिया। जब मुझे पता था मैं बताने वाला हूँ। अभी लाइफ के अंदर थोड़ा सिंप्लिसिटी रहने से लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा वर्ड है, मैं भी दे रहा हूँ इसके, मैं भी डेफिनेशन बता रहा हूँ। वंश मेंशन लिख दिया आईडी के। ओके ओके, मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ और चैट में जा रही है। अर्नव इसको ना वो कर देना, कट कॉपी पेस्ट कर देना ताकि बाकी लोगों के लिए भी काम आ जाएगी फिर। Jurisdiction of an authority, for example, any government office, any court, any officer means। मैम गुड इवनिंग, इसको ये अभिनव को ज्वाइन कराइए जल्दी। अभिनव, हाँ ठीक है sure sir. हाँ. the area in which authority of that person, officer or court is applicable. For example, jurisdiction of Yogi Adityanath's government is UP state only. It cannot extend, the authority of this government cannot extend beyond UP. Another example to understand the meaning of word jurisdiction is that a judge of a court cannot pass orders on behalf of an army general. The jurisdiction of the judge is within his court, while as the jurisdiction of a general is in the area or the troops that that general is commanding. Clear? Plenty clear? Yes sir. दोनों चीज बता दी, एरिया भी बता दी और दूसरे के मामले में दखल भी बता दी, नहीं होगा। ओके, एनी अदर डाउट्स गाइस बिफोर वी गो अहेड? Sir, I have. या ओके ऋत्विक तावरी, गो अहेड। So, when our body is suffering from fever, Yeah. then what exactly takes place? Like, do our blood vessels have some problem, or what effects are there? ओके बता रहा हूँ।
बस एक छोटी सी बात याद रखना, वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू कांस्टेंट y2. See what is happening when we are having fever. A lot many things are happening. You said fever. See, so fever actually is not a disease. Fever is a symptom. So what happens? Let's see. It goes like this. So you are healthy. You're healthy and happy, right? Now you encountered any kind of infection. It could be infection. It could be an injury. Now everybody knows the difference between infection and injury. इंजरी में क्या होता है, कुछ कट जाएगा, पिट जाएगा, टूट जाएगा, हाथ फाट से कुछ हो जाएगा, और आंख के अंदर कुछ लग गया, कान के अंदर कुछ लग गया, मतलब समथिंग एक्स्ट्रा हैज कॉज्ड योर मैकेनिकल इंजरी. इन्फेक्शन क्या होता है, यू डोंट नो. तुम जा रहे थे, तुम्हारे दोस्त को खांसी जुकाम हो रखा था, कफ हो रखा, उसने छींक दिया और एंटीजेंस पैथोजेंस तुम्हारे अंदर चले गए. सो व्हाट हैपेंस हियर इज, now body will start two processes. In case of injury, it are two processes. In case of infection, this one process. So what is the process? The process fight antigens. Antigen क्या होता है? What is antigen? Antigen is the harmful part of the pathogens. Pathogen कुछ भी होता है, बैक्टीरिया, वायरस होता है. So what is antigen? Antigen is dangerous, not harmful, dangerous. डेंजरस पार्ट ऑफ पैथोजन. ये सारे कीटाणु विटाणु इनको पैथोजन बोलते हैं, लेकिन इनका जो डेंजरस पार्ट होता है उसको एंटीजन बोला जाता है. फाइट एंटीजन एंड प्लस रिपेयर वर्क. रिपेयर वर्क तो नॉर्मल अपना जो सेल टूटी है उनको रिपेयर करना है, लेकिन यहां पे कुछ होता है. यहां पे क्या होगा, यहां होगा कि बॉडी बनाएगी एंटीबॉडीज. तो एंटीजन से लड़ने के लिए बॉडी बनाती एंटीबॉडीज क्रिएटेड. और कौन क्रिएट करता है एंटीबॉडीज को? हमारा इम्यून सिस्टम, WBC, इम्यून सिस्टम, WBC. Now there is a fighting going on, actual physical fighting between antigen versus antibody. While this is going on, because of this fighting, the body temperature will increase. Body temperature increase, go up. Also, there is inflammation inside the cells. Inflammation का मतलब होता है swelling. इन सेल्स. हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर ये सब चीजें होती है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन, वो मोटे मोटे वो दैट. अच्छा, नॉट ओनली WBC, देयर अदर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम के 2-3 पार्ट होते हैं. एक तो WBC तो है ही, साथ में हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो कि हमारी फैट को कैरी करता है बॉडी में. जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, ट्रांसपोर्ट में तुमने पढ़ा होगा, लिम्फेटिक भी एक पार्ट होता है, लिम्फेटिक होता है, उसके अंदर भी एंटीबॉडीज आती है. और साथ में हमारा एडिपोज टिश्यू इसके नीचे जो है, उसके अंदर भी एंटीबॉडीज फाइट करने के लिए रेडी है. तो हमारी बॉडी के अंदर अभी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फाइट हो रहा है. और एक्यूट क्या हो रहा है, अब हमारी बॉडी को एनर्जी बचानी है. किस लिए बचानी है? उससे फाइट करने के लिए. तो अब हमें क्या शुरू हो जाता है, हमें भूख नहीं लगती, हमें खाने का मन नहीं करता. क्यों? अगर तुम फीवर हो रखा है, तुम खाना खाओगे तो जो बॉडी की एनर्जी कहाँ जाएगी? डाइजेशन करने में जाएगी. बॉडी डजंट वांट टू लूज एनर्जी, योर हंगर गोज डाउन, यू डोंट वांट टू ईट, यू वांट टू जस्ट लाई डाउन. अगर बंदे को फीवर हो रखा, बंदे का मन कर रहा फुटबॉल खेलने का, बॉडी कहेगी यार मैं इधर एनर्जी फाइटिंग में लगाऊं कि तेरी फुटबॉल के लिए एनर्जी निकालूं, तो बंदे को मन नहीं करता उठने का. दिस इज हाउ वी गेट द बॉडी टेम्परेचर इनके, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज, फटीग.
एवरीबडी नोज व्हाट इज फटीग. फटीग के दो मीनिंग होते हैं. एक तो फटीग आर्मी के अंदर यूनिफॉर्म को बोला जाता है, ड्रेस को, जैसे जैसे कॉम्बैट फटीग बोलते हैं हम लोग, जो हम ड्रेस लड़ाई के दौरान पहनते हैं, तो कॉम्बैट फटीग बोलते हैं. दिस इज नॉट दैट फटीग. दिस फटीग इज नॉर्मल थकान जिसको बोलते हैं. ठीक है. सो बॉडी टेम्परेचर, इन्फ्लेमेशन, फटीग, एंड वन मोर थिंग विल हैपन इज योर हंगर एंड अदर बॉडी हंगर डाउन. हंगर डाउन, ठीक से मोशन नहीं बनेगा, ठीक से मोशन नहीं बनेगा, पॉटी नहीं आएगी, ऐसे मन. तो बॉडी एनर्जी बचा रही है इन सब चीजों को करके, और उन चीजों को करके फाइटिंग कर रही है. ऋत्विक. Okay, sir. So I had to ask one more thing. या आस्क मी. सर बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, राइट? या तो सर वायरस का कोई सिंगुलर या प्लूरल होता है? हाँ, मैंने सुना ही नहीं आज तक. शायद से वायरस को, ये तो वायरियम होता होगा, चेक करना पड़ेगा, मैं चेक कर लूंगा. ठीक है, अभी तक मुझे याद नहीं है. बैक्टीरियम इज राइट, प्लूरल होता है. बैक्टीरिया इज सॉरी, बैक्टीरियम इज सिंगुलर, बैक्टीरिया. चलो शुरू करते हैं अपना ये. इसका मैं फोटो ले लूं एक बार. आई विल पुट इट इन द ग्रुप. अब हम आज शुरू करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके भाई, और किसी को कोई डाउट? प्रभगुण, तस्मिया, श्रिखा, सिया, जिया, अर्शिया, वंशाहर, ऋतिक चंदेल. भाई कोई डाउट हो तो पूछो. नो सर. नो डाउट. अभिनव, एनी डाउट्स? No, sir. ओके, चलो तो शुरू करते हैं. So we have seen direct proportion is this. What is indirect proportion? Let us see. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम कैसी बात करते हैं कि भाई देखो, आपकी बर्थडे की पार्टी है. आपने अपने बर्थडे पार्टी में ये प्लान किया है कि हर बंदे को 2-2 बर्गर मिलेंगे जो मेरे फ्रेंड्स आएंगे. ठीक है. सो मोर फ्रेंड्स यानी कि एक्स मीन्स मोर बर्गर्स. मोर फ्रेंड्स मतलब मोर बर्गर्स. तो भैया एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा. एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई. दैट इज वाई इट्स कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके. सो और इन दोनों का जो वो रहेगा, प्रोपोर्शन रहेगा एक्स अपॉन वाई, ये कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास ये प्लान था तुम्हारा कि मेरे अगर एक फ्रेंड आएगा तो 2 बर्गर दूंगा. वन फ्रेंड इज इक्वल विल ईट 2 बर्गर्स, तो 2 फ्रेंड्स विल ईट 4 बर्गर्स एंड 3 फ्रेंड्स विल ईट 6 बर्गर्स. देख लो, इसका कांस्टेंट रह रहा है बिल्कुल. ये 1/2 है, पहला वाला 1/2, दूसरा वाला 2/4, तीसरा वाला 3/6. तो सबका देखोगे तो दीज आर इक्वल. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन कहाँ लगेगा अपने को, मैं बताता हूँ. पहले मैं तुम लोगों से पूछूंगा अभी, एक मिनट में पूछने वाला अभी. सर मेरे को एक चीज पूछनी इनवर्स है. प्रोपोर्शन. हाँ, या आई थिंक समबडी हैज अ डाउट. या गो अहेड. सर अगर स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, इफ एक्स, तो फिर स्टेटमेंट कैसे बनेगी? इफ x1 इंक्रीजेस देन? y1 increases. ओके सर. If x1 decreases then y1 decreases. ठीक है. नाउ ये तो ठीक है, इस तरह का काम तो ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ. लेट अस से यू वांट टू बिल्ड ए वॉल. Build a wall. Okay, and the wall is 10 meter high into 10 meter length मान लो और 5 meter height मान लो. ये आपकी वॉल है और यहां पे आपने लेबर लगाई अपनी. तो लेटर से आपने 10 लेबर लगाई, काम कुछ दिनों में हो गया. लेटर से x1 लेबर थी और ये वॉल कांस्टेंट है दोस्तों. वॉल कांस्टेंट, ये है लेबर. थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं. वॉल आपकी कांस्टेंट है, यहां एक लेबर है और यहां पे आर्स है. सो मैं इफ आई टेल यू कि 10 लेबर ने इस वॉल को कंप्लीट करने में 20 आवर्स लगाए. सो दिस मे बी एक्स, दिस मे बी वाई.
जिया, अगर मैं लेबर को बढ़ा दूंगा, 20 कर दूंगा, तो ये आवर्स ज्यादा होंगे कम होंगे? ये सर बढ़ गया, कम। आवर्स कम हो जाएंगे दोस्तों, ये जल्दी काम कर देंगे बंदे, 10 आवर्स में कर देंगे शायद से। तो जब भी एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज x1 इंक्रीजेस, y1 डिक्रीजेस। जब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो इनका जो कांस्टेंट, इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू कांस्टेंट के। बस इतनी सी कहानी है इनवर्स प्रोपोर्शन की, बस इतनी सी कहानी है इनवर्स प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल देखो, एक फोर्ट के अंदर खाना रखा था, फोर्ट के अंदर खाना रखा था। तुम लोगों को पता होगा पुराने जमाने में अंग्रेज वगैरह क्या करते थे, या ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मुगल क्या करते थे, कि कोई फोर्ट होता था उसको वैसे नहीं जीत पाते थे। जैसे 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 शिवाजी का पुरंदर फोर्ट था, उसको जीत नहीं पाए थे। या फिर एक जिंजी का फोर्ट था जिसको औरंगजेब को जीतने में 8 साल लगे थे, 8 ईयर्स। जिंजी का फोर्ट, जो कि कर्नाटिक वार का किस्सा है, किसी ने टाइम मिलेगा तो सुना होगा, कर्नाटिक वार का पार्ट है वो। तो जिंजी के फोर्ट को जीतने में 8 साल लगाए थे औरंगजेब ने। तो करते क्या थे ये लोग, इसके चारों तरफ सीज डाल देते थे, यानी कि चारों तरफ से इसको सील कर देते थे, ना तो कोई अंदर आ सकता, ना कोई बाहर जा सकता, ना कोई अंदर आ सकता, ना कोई बाहर जा सकता। यही काम औरंगजेब ने किया था। जब उसके पापा शाहजहां ने उसको गद्दी देने से मना कर दिया, तो जो आगरा का फोर्ट था जहां पे कि शाहजहां रह रहा था, औरंगजेब ने उसके चारों तरफ वो डाल दिया, और जो पानी के आने के रास्ते सब बंद कर दिए। तो 6 दिन बाद पानी की वजह से लोग मरने लग गए। तो फिर शेर शाह की सिस्टर थी, वो गई शेर शाहजहां के पास, कहा कि भैया सब लोग मर रहे हैं, आप प्लीज मैसेज भेज दो कि आप आत्मसमर्पण करने को तैयार। फोर्ट वगैरह में ही होता है। तो फोर्ट वगैरह होता क्या है, सपोज करो देयर इज अ फूड, एंड फूड इज अवेलेबल फॉर लेट्स से 1000 सोल्जर्स, और इस फोर्ट में मदद करने के लिए, अच्छा फूड इज फॉर 1000 सोल्जर्स एंड लेट से इट इज अवेलेबल फॉर 30 days. Now to help these soldiers against the attack, I have sent 2000 soldiers more. So what has happened? X1 has increased. Arshia, number of days की जो availability है, this will go up or come down? Sir, come down. It will come down. अब जो साला खाना 30 दिन चलना था, अब वो 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, जो भी चलेगा, तो ये will come down. Y1 will come down. So this is another method. This is another this thing. तो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आते हैं, कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंड फोर्ट और फूड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फूड बेस्ड क्वेश्चन ये भी है, ध्यान रखना, वो जो बर्गर वाला, ये बर्गर वाला भी है कि कितने फ्रेंड है तो कितने बर्गर है, ये भी खून है। लेकिन यहाँ पे खाना फिक्स है, यहाँ फूड फिक्स है भाई, फिक्स अमाउंट है, बढ़ नहीं रहा है। अब अवेलेबिलिटी देखो, तो इन दिस केस व्हाट विल डू इज x1 y1 इज ऑलवेज इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, इसमें पता है एक और चालाकी करते हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत चालाकी करते हैं लोग। क्या करते हैं कि फोर्ट के अंदर 1000 लोगों के लिए खाना था, इट वाज देयर फॉर 40 days, आफ्टर अ वीक 1500 soldiers have come more, now food will last for how long? तो तुम्हें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन भाई, सपोज करो पहले बोला कि 1000 सोल्जर्स हैं, वंश शुरू में बोला 1000 सोल्जर्स हैं और 30 days का खाना है, 7 दिन बाद 1500 सोल्जर और आ गए, तो तुम स्टैब्लिश कैसे करो, देख रहे ऐसे करना है। 1000 सोल्जर्स के लिए अभी 23 days का खाना था इससे पहले कि बाकी सोल्जर्स आए, अब 1500 और आ गए, तो अभी 2500 सोल्जर हो गए, इनके लिए कितने दिन का होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ यहां जो भी वैल्यू रखोगे। अंडरस्टूड? सिया, इस बात समझ में आई? जो सोल्जर बाद में 7 days के बाद ज्वाइन करते हैं, 7 days लेटर। सिया, Yes, sir. बहुत आसान चैप्टर है यार ये, इस चैप्टर को ज्यादा जाननी है, थोड़ा सा पढ़ ले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। बीच में कोई मेरे से कुछ पूछ, अच्छा नहीं ऋत्विक ने पूछ लिया।
Okay, guys, just let me share the notes. 8. कोई भी क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन बैंक मेरे पास कोई कमी नहीं है, बहुत क्वेश्चन बैंक पड़े हुए हैं। तुम लोग को बस मांग लिया करो कि सर इसके क्वेश्चन भेज दो, क्वेश्चंस विल कम टू यू। नहीं कोई क्वेश्चन आ रहा है मेरे से पूछो। ओके, या मैंने क्या बोला, चैप्टर नंबर, चल ओके, नहीं एक्सपोनेंट पावर है सर 30। 13 या मिल गया। ओके, राइट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कर चुके थे, इसके सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिए। इनवर्स प्रोपोर्शन एक बार पढ़ना है। वंश आप पढ़ो इनवर्स प्रोपोर्शन, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। वंश, Inverse proportion. Two quantities may vary in such a way that if one increases, the other decreases, and vice versa. Then the two quantities are said to be in inverse proportion. In other words, if two quantities A and B vary with each other in such a manner that the product AB remains constant and is positive, then we say that a variance inversely with B and B varies inversely with A. Thus, two quantities A and B are said to vary in inverse proportion if there exists a relation of the type AB equal to K between them where K is a positive constant. Example, if two quantities A and B vary in inverse proportion to each other and B1, B2 are the values of B corresponding to the value A, A2 of a respectively, then AB is equal to K equals to A2, B2 is equal to K, or A1, A1 by A2 is equal to B2 by B1. ओके, इसका क्यूबी अभी नहीं है, ठीक है, मैं क्यूबी बनाता हूँ और भेजता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल पढ़ दे यार, ये एग्जाम्पल 1, वंश आप ही पढ़ दो। Example 1. If 52 men can do a piece of work in 35 days, in how many days 28 men will do it? Solution. Suppose 28 men will do the piece of work in X days. The given information can be exhibited in the following tabular form. Clearly, less in the number of men, more will be the number of days to finish the work. Therefore, it is the case of inverse proportion. Therefore, ratio of number of men equal to inverse ratio of numbers of days. That is 52 ratio 28 equal to x ratio 35 equals to 52 upon 28 equals to x upon 35 equals to 52 into 35 equals to 28 into x. X is equal to 52 into 35 upon 28 is equal to 65. Hence 28 men will do the work in 65 days. ओके, ये नोट्स पढ़ देना। Note, in some cases, variable increasing or decreasing together need not always be in direct or inverse proportion. Example, physical changes in human beings occur with time but not in a predetermined ratio. Changes in weight and height among individuals are not in any proportion. There is no direct relationship or ratio between the height of a tree and the number of leaves growing on its branches. Okay, I'll just explain this part to you. I'm just sending the questions first. Okay, मेरी एडवाइस अगर मांगोगे, बोलो कि सर एक आप, if you want to tell the most important point, what would that be? So that point will be that either whether you are doing inverse proportion or doing direct proportion, kindly make the table. जरूर बनाना है, ये बॉक्स जरूर अपने को बनाने का है, ठीक है। So whatever, let's say you have said soldiers here, this will be x1, this will be x2. Write this number of soldiers, 1000 or 2500.
नंबर ऑफ डेज x1 में थे 23, x2 में है कुछ भी मान लो, a मान लो, b मान लो, x5 मत मानो, a b मान। सो नाउ एंड दिस इज y1 y2, ये भी ध्यान से लिखना इधर। नाउ सी x1 into y1, x1 y1 is equal to x2 y2। तो 100 1023 is equal to, अब ये हो गए 1500 ज्यादा आए थे ना 25 into a is equal to 1000 into 23 अपॉन 2500। बेसिकली मैंने ऑड ऐसी कुछ भी वो ले लिया है, वैल्यू ले ली है। So this will not come in exact this thing, it will come something 46 upon 5. So a is equal to, you can say 5 9 1 upon 5 days। इस तरह से आंसर आ जाएगा। So if you ask me what is the most important thing in this, please make this table. The moment you make the table, your question gets shortened or summarized or reduced to बड़ी छोटा सा part. Now it is manageable. एक हाँ ये इनवर्स और रेशनल प्रोपोर्शन का इसने बोला है, हमारे को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बिल्कुल प्रोपोर्शन, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन मिलेगा, वो ट्रीज के और हाइट के। हालांकि हाइट का एक क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी क्लास में आता है, हाइट का आता है क्वेश्चन कि बच्चे, इस उम्र के बच्चे कितनी हाइट है, इतनी प्रोबेबिलिटी इतनी होती है, तो अभी इसकी हाइट और कितनी बढ़ेगी टाइप, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। बट यहाँ वो बात नहीं है, वो वाले प्रोपोर्शंस जो हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। अरे यार एक मिनट, यस प्रेजेंटिंग। तो आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ये बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और अपन उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। जितनी पेंसिल बढ़ेगी उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो x1 upon y1 is equal to x2 upon y2, 10 upon 90 is equal to 19 upon x। 1 upon 9 का रेशियो है, आंसर क्या आएगा 170, 19 9 जा, ओके So 171. 171, ओके। यार ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉर फिक्स टाइम पीरियड एंड डेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चाहिए अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 दिस VSC वेरी शॉर्ट आंसर है। बताओ भैया, चैट बॉक्स में, मैं अभी मत लिखना, पहले में लाइन में डी लिखना, क्योंकि मैं चाहता हूं आंसर सबका इकट्ठा है। Nobody is tempted to get influenced by others answer. Question number 2. Yeah. Okay, somebody to read this. Ritvik Chandel, can you read question number 2? Justify the statement. Justify the statement. For fixed time period and rate the interest, the simple interest in directly proportional to the principal. हाँ भैया, ट्रू है फॉल्स है, बस इतना बताना आप लोगों ने, ट्रू और फॉल्स। जितना प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होगा उतना ही इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल अमाउंट। इससे ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आपको, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गो थ्रू दिस। ओके, सेंड द आंसर वंस आई सेंड द लाइन।
एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? If x and y are in inverse proportion, check whether x plus y and y plus 1 are also in inverse proportion. डी लिखना है फिर सेंड कर देना? हाँ जी, डी लिखो, Send पहले कर डी देना लिखो, है? पहले डी, या जस्ट राइट डी. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ओके भाई, लोग जिनको टाइम चाहिए तो बताओ, अदर आईडी के लिखो. आई डोंट वांट ए सिंगल स्टूडेंट ऑफ माइन टू रिमेन ब्लैंक. जिसको नहीं आ रहा आईडी के लिख दो. अभिनव, वंश, शिव कहाँ है यार? शिव, हाँ, शिखा. जिसको नहीं आता यार आईडी के लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं. जिसको आता है बोला से 2 मिनट दे दो तो मेरे को बात बताओ. ओके, राइट. All those guys who had done, who know, give an answer. Yes or no? Okay, Ritvik, why are you saying no? So because for example, if we take 9 by 10 and we so I took it as an example and it worked for me. I took an example for 11 by 22. The proportion is 1 by 2. The ratio is 1 by 2, and if we add 1 to both of them, Okay, it okay, will be hold. Yeah, Arnav, how did you come to the conclusion that they are in inverse proportion, x plus y, x plus 1 y plus? Yeah. Sir, Arnav, I बताओ. took the example as x as 2 and y as 4. Then if we increase 1 and then x becomes 3 and y becomes 6, then the value will be same. Okay. तो पूछ रहा है x and y are inverse proportion. What about x plus 1 and y plus 1? इस तरह का क्वेश्चन अपने को एग्जाम्पल के साथ ही करना है. मैं दोनों एग्जाम्पल ले रहा हूं. अर्णव, आपने क्या लिया? x इज इक्वल टू Sir, 2. y इज इक्वल टू Sir, 3. ओके. so x plus 1 is equal to 3 and y plus 1 is equal to 4. Let us see. Arnav, let's see. So if they are, if yes, then जिया, अगर ये बात सही है तो x अपॉन y इनवर्स प्रोपोर्शन है, सॉरी, देन x इंटू y इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो x इंटू y, देन xy इज इक्वल टू x plus 1 and y plus 1. ओके, देखते भाई. So 2 into 3 is equal to 3 into 4. This is 6 and this is 12. Can they be equal? No, they are not equal. Moreover, if I open this, तुम सब लोगों ने algebraic expression पढ़े हैं, क्लास 7th में भी पढ़ा है, क्लास 8th में भी पढ़ा है. This will become xy is equal to, this will become xy plus x plus y plus 1, which is not possible. It is only possible अगर ये दोनों जीरो, तो xy से xy कट जाएगा. It is only possible when x plus y plus 1, जब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो. So this is not right. So this is false. ये समझना जरूरी है कि हम इसको एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड गाइस? कोई दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं इसको? अभिनव, ऋत्विक, चंदेल, अर्नव, अर्षा, जिया, सिया, ऋत्विक, Yes, sir. ऋत्विक तावरी, शिव, श्रीका, बताओ, कंफर्म करो भाई. Yes, दोबारा sir. बताने की जरूरत तो नहीं. सिया, तस्मिया, रबगुन,
डन? sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं बोर्ड पे जाऊँ ना, इसको मेरे याद दिला दिया करो, मैं प्रेजेंटेशन हटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इससे क्या है कि ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तुम लोग एक बात बता दो, रुक जाओ, एक बात तुम्हें बता रहा हूँ। कल क्लास 10th की क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जो सीबीएसई की जो भी साइट होती है उनको फॉलो करता हूँ, और सीबीएसई में जो भी इंटरव्यू वगैरह आते हैं सीबीएसई डायरेक्टर के उसके, तो 5 अक्टूबर को अराउंड 10 days बैक देयर वाज अ वेबिनार कंडक्टेड बाय सीबीएसई पैनल फॉर टीचर्स के हाउ टू प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर द क्लास 10th और फॉर बोर्ड एग्जाम्स। एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग 1.5 hour का वेबिनार था, मैंने पूरा देखा। आने वाले टाइम में रिकॉल के जो क्वेश्चन है ना, जो रिकॉल समझते ना, जो मेमोराइज किया आपने, या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, दे विल बी ओनली 46%. Who was the Sultan of Delhi in 1856 or whatever? Who founded slave dynasty, or Battle of Plassey was fought between whom and whom? Like ऐसे क्वेश्चन 46%. 22% क्वेश्चन आएंगे जो कि असर्शन रीजन बेस्ड होंगे, और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। साइंस में खासकर, साइंस में क्या करेंगे, वो 2 दे देंगे एक्टिविटी बेस्ड टाइप की, जैसे ना वो एक यहाँ पे, यहाँ एक प्लांट, यहाँ पे यहाँ प्लांट, यहाँ पे किसका वो बढ़ जाएगा, किसका इस टाइप। एंड 32% क्वेश्चन आएंगे हॉर्स। ठीक, एक दो क्वेश्चन मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई रियली वांट कि अभी से, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन आईएमओ एंड आईएसओ, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चन। तो अभी से आप लोगों ने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि भाई, और खासकर अब तुम मेरे स्टूडेंट हो यार, मेरे से तुम कॉन्सेप्ट पूछोगे तो मैं साला कॉन्सेप्ट तुम्हें अंदर तक घुसा के समझाऊंगा कि भाई ऐसा होता है गुरुजी, इस वजह से होता है। अब तुम लोग अपने ब्रेन को तुम्हें रेडी करना है कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन यार आएंगे आने वाले टाइम में हमारे, और पहले ही 10th से स्टार्ट होगा, फिर ये 9th में आएगा, फिर ये 8th में आएगा। क्योंकि मोदी ने अपने जो नई पॉलिसी निकाली है एनईपी 2020, इसमें लिखा हुआ है कि वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम रोट बेस्ड लर्निंग। रोट होता है आरओटी, रोट, रट्टा मारना इसको बोलते हैं। We have to move away from that, and we have to actually see the application of knowledge of children. I just want to show you some questions. These belong to class 10, but don't get, I think some of the easier questions you can try. Just want to give it a try, because इस chapter में तो कुछ खास है नहीं अभी. We have time. I'll come back to this chapter. Just give me a moment, please. Yeah. So you are saying that query based questions होंगे आगे? आगे कैसे बेस्ड क्वेश्चन? केस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं उनको, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कहते हैं। कुछ सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का है, ओके, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही तुम्हारे लेवल का है, दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लेवल का है, ये भी है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आईएमओ वगैरह में, ये क्वेश्चन है। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं एक बार फटाफट करके प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू करते, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का नहीं, 10th का क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लुक एट दिस, सी दिस इज द क्वेश्चन। नूर, यंग साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। एक प्रोजेक्ट बनाया उसने, और बॉक्स के अंदर कुछ रखा हुआ है, अब ये नहीं पता क्या रखा है। लाइट की रेज पास हो रही है, एक रेज रे 1 है, वो नीचे से वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, रे 2 भी ऊपर उठ जाती है, पैरेलल आई थी, पैरेलल जा रही है, और उसने यहाँ पे ले लिया, उसको स्क्रीन ले लिया, उसने यहाँ पे स्क्रीन पे ले ली इमेज। अब आपको बताना है कि क्या है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर।
बॉक्स के अंदर क्या है, ये ऑप्शन है आपके। कन्वर्जिंग लेंस, पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, प्लेन मिरर, ट्रायंगुलर प्रिज्म। नीचे वाला क्वेश्चन 9th का 10th का है, वो उसको नहीं छेड़ेगा। हाँ बताओ भाई। या एनी गेसेस? सर एक बार फिगर दिखा दीजिए। ओके तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि बॉक्स भी है। जैसे जरूरी नहीं कि तो बॉक्स है यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसे लिखा है तो ट्रायंगल भी हो सकता है ना, एक्स यानी ऑब्जेक्ट ही है बस। हाँ बॉक्स के अंदर कुछ रखा हुआ है जिसमें से लाइट की रेज पास नहीं हो रही। अच्छा सर, आंसर यानी लाइट की जो रेज है वो एज इट इज आ रहे हैं या फिर कुछ कलर में चेंज है? देखो ना, चेंज हो गया, थोड़ा कलर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इनकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही है। ओके सर। ओके। Sir, can you show the options? Okay. Anybody who is confident can write in the chat box. You only have to answer the first question, first part. Not तो the लाइन खींच दीजिए। हाँ जी, लाइन खींच दे। Line. ओके, लाइन ओके, गो। All right, guys, I'll tell you what is the answer. देखो लाइट का चैप्टर हम कर चुके हैं ना, Yes. कन्वर्जिंग लेंस होगा, कॉन्केव होता है कन्वर्जिंग लेंस, ऐसे करके लाइट को ऐसे कर देगा। दो रेज आई थी, R2 और R1, ये तो कन्वर्ज हो जाती, तो ये दिस इज आउट। नेक्स्ट, अ प्लेन मिरर, अगर यहां मिरर होता बॉक्स के अंदर तो रे 1 और रे 2 वापस चली जाती, तो दिस इज ऑल्सो आउट। तीसरा है ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर प्रिज्म होता दोस्तों तो प्रिज्म के अंदर रे ऐसे आती है, ऐसे जाती है और नीचे की तरफ चली जाती है, ऐसे निकलती है दोनों। सिर्फ एक चीज है बची, इट इज अ स्लैब ऑफ ग्लास। ग्लास की स्लैब में क्या होता है, लाइट ऐसे आती है और ऐसे नहीं, एक्चुअली स्लैब में ऐसे आती है लाइट, ऐसे आती है और फिर यहां से निकलती है, एग्जैक्टली नहीं निकलती। इधर देखो, सर पैरेलल साइडेड यानी एकदम स्ट्रेट लाइन परफेक्टली कट है। हाँ देखो ऐसे निकलती है, ऐसे आती है ना, ये एक्चुअली में तो ऐसे निकलनी चाहिए थी, यहाँ से ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे नहीं सर जाती, आपकी यहाँ स्क्रीन शेयर। से यहाँ से जाती है। ये क्या करती है, यहाँ से जाती है, थोड़ा सा सेम वाटर में भी डिस्प्लेसमेंट होता आ है ना? जाता है, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है दोनों के बीच में, जिसको कॉल लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो वो भी कह रहा है कि लाइट ऐसे आ रही थी, अब थोड़ा सा ऊपर से जा रही है, ये वाली जा रही थी थोड़ा ऊपर से जा रही है, यानी कि थोड़ा सा दोनों रेज के बीच में ओरिजिनल से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका आंसर है स्लैब ऑफ ग्लास ब्लॉक, जो कि मेरे ख्याल से अर्नव ने सिर्फ अकेले आंसर दिया। ठीक है, तो इस तरह के सर क्वेश्चन आएंगे, पैरेलल हालांकि साइडेड से कंफ्यूज हो गया। हाँ, हालांकि तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट, तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, सारा मेरा ये पूरा बैच काफी इंटेलिजेंट है। एक और दिखा देता हूँ, और ये तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर मुझे लगा तुम लोग, मुझे लग रहा है पक्का दे पाओगे। जस्ट लेट हैव अ लुक, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, ऑन दिस, हाँ ये क्वेश्चन था। ओके सिया, कैन यू रीड दिस क्वेश्चन? नीचे वाली लाइन पढ़नी, नीचे वाली लाइन। सिया, लाइन नहीं आ रही, यू कांट सी? सर लाइन खींच दीजिए। ओके, क्वेश्चन तो मैं पढ़ दूं पहले। Which of the following closed bottles definitely contains a solid substance? Definitely contains a solid substance. मैंने लाइन तो खींचने दो, मैं तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला था सिया को। हाँ
बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि okay, which is the property that is helping us solve this question, guys? Which is the property? So solids have a fixed shape. Solids have a fixed shape. Solids do not change their shape. एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये भी तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है। तो बेसिकली मेंटली तुम लोगों को रेडी रहना है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आने वाले टाइम में हमारे आएंगे। या दिस इज द क्वेश्चन गाइस। Sir, ओके, लाइन। मेटल स्पून, वुडन स्पून, प्लास्टिक स्पून, एक दिन आधे दिन के लिए एक हॉट वाटर में रखा गया, सेम टेम्परेचर था हाफ डे के लिए। जब उनको निकालेंगे और टेम्परेचर चेक करेंगे तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? आंसर डालो भाई। सर परसेंटेज क्या कि इतने बच्चों में से इतने में ये जवाब दिया? वो दिया हुआ है इसमें, 15,000 बच्चों पे टेस्ट किया गया था, बच्चों के आंसर ऐसे थे। ओके गाइस, आंसर राइट आंसर है डी। अगर 2 मिनट 4 मिनट की बात हो तो कंडक्शन की बात हो सकती है, लेकिन आधे दिन तक उसमें रखे हुए ना आप, तो टेम्परेचर सबका इक्वल हो जाएगा, सबका टेम्परेचर इक्वल होगा। डी इज द राइट आंसर। सो इनको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग को मेंटली रेडी रहना आने वाले टाइम में। मैं भी कोशिश करूंगा, अब जैसे जैसे मेरा सिलेबस पूरा होएगा तो मैं तुम लोग ऐसे क्वेश्चन दूंगा, डिस्कस करूंगा। चलो ओके गाइस, कम हियर नाउ। Excuse me, sir. या सर ऑप्शन डी में लिख रखा था कि ऑलमोस्ट सेम होगा। सर वैसे तो मेटल का होगा ना? नहीं होगा ना मेटल का सेम यार, मेटल का क्यों सेम होगा बताओ? अगर 5 मिनट के लिए रखते, 10 मिनट के लिए रखते, 1 घंटे के लिए रखते तब फर्क हो सकता था। तो 12 आवर्स दोनों को तीनों को रखा हुआ है, एनर्जी सब में बराबर जाएगी, सबका टेम्परेचर सेम होगा। अच्छा सर, तो जो हीट होता है वो कूल डाउन हो जाता है उतने टाइम के बाद? 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हो सकता है। हाँ, अगर वो क्वेश्चन पूछता आपसे कि आपने अपनी स्किन पे लगाया तब कौन सा ज्यादा सबसे गर्म लगेगा, तब आप बोलते मेटल, क्योंकि मेटल की हीट एकदम से आपकी स्किन में आ जाती है, प्लास्टिक की नहीं आएगी, वुडन की इतनी जल्दी नहीं आएगी। मेटल एकदम हाथ जला देता है आपका, वुडन अगर गर्म भी होगा उतना जल्दी हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता वो। और उसने वो नहीं बोला, उसने बोला कि टेम्परेचर किसका ज्यादा हुआ। वी आर नॉट मेजरिंग यूजिंग, लेट अस से वी आर मेजरिंग यूजिंग जो आजकल गन आ रखी है कोरोना वाली, उससे मेजर कर रहा है, सबका टेम्परेचर सेम है। ठीक, चलो ओके, लास्ट क्वेश्चन। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे पूरे चैप्टर करा के, मैं कल इसकी क्विज कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, find the proportion between side of a square and its perimeter. Is it inverse? Is it direct? सर मेरे Okay, से पता नहीं कौन सा वाला आंसर डाला, चाहे चैट बॉक्स अब डालो, अब डालो। Direct. Correct. Okay, see. सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो। ठीक, ये स्क्वायर है आपका, इसकी साइड है ए, पेरीमीटर कितना हो गया? P इक्वल टू 4a। तो अगर साइड को आप x मान लो और पेरीमीटर को ये मान लो, अब देखो ये साइड है, ये पेरीमीटर है, ये x1 x2 y1 y2। साइड ए पैरामीटर 4a, साइड x पैरामीटर 4x। देख लो, 4a/4a x अपॉन कांस्टेंट है
1/4 डायरेक्ट. ओके गाइस, जस्ट रिमाइंड मी, अर्षा मेरे को मैसेज भेज देना, मैं कुछ क्वेश्चन डालता हूँ उसके और कल इसको चैप्टर को क्लोज कर देंगे. ठीक है. व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर दिस चैप्टर? मैसेज डालो फटाफट. व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? डेटा हैंडलिंग. ऑलराइट, डेटा हैंडलिंग प्रोबेबिलिटी कराता हूँ, उसके बाद साइंस पे चले जाएंगे वापस. सब गुड. या अगर जल्दी नहीं है तो बीच में साइंस कर लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं. कोई इमरजेंसी तो नहीं अर्नव? ऋत्विक? No, sir. थोड़ा सा साइंस कर लो, उसके बाद कर. लेकिन साइंस में करना क्या है? एक मिनट बताता हूँ मैं साइंस में हम क्या क्या कर चुके हैं. प्रोबेबिलिटी इतना आसान चैप्टर है, डेटा हैंडलिंग इतना आसान चैप्टर, 2 दिन खत्म हो जाएगा. देखो साइंस में अभी हमारा क्या क्या बचा हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स है. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेस्ट में आ रहा है हमारे. रिप्रोडक्शन एनिमल्स कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, काफी कुछ इसमें लर्न करने वाला है. ठीक है गाइस, ओके. रिप्रोडक्शन हाँ होगी, थोड़ा सा चैप्टर लंबा जा. राइट, ठीक है. वी कंटिन्यू डे आफ्टर, बट टुमारो वी डू दिस मैथ. कल मैं कराऊंगा, उसके बाद मैम को बोलूंगा एक दिन बाद 2 घंटे क्लास कराएगी, पूरा प्रोपोर्शन का पूरा चैप्टर क्लोज कर. Right guys, good night everyone, see you tomorrow. Please make your notes, please make your notes, please make your notes. Ask me for the questions, Arsha. Bye bye. Okay, sir. Thank you so Bye, much, bye, sir. bye. Good Bye, night. sir. Thank you, sir. Bye, bye, bye. Bye, Shrika.